جنوبی پنجاب کا بجٹ صرف جنوبی پنجاب پر ہی لگے گا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا ڈیرہ غازی خان کی پسماندگی دور کرنے کا عزم، ضلع کو نئے بجٹ میں 4 گنا زیادہ ڈیولپمنٹ پیکج دینے کا فیصلہ کر لیا گیا۔ آئندہ مالی سال میں 49 ارب روپے مالیت کے 237 ترقیاتی اسکیموں پر کام شروع ہوگا۔ 15 ارب روپے مختص کیے گئے۔ ڈپٹی کمشنر کیپٹن ریٹائرڈ محمد علی اعجاز کی محکموں کو تیاری کرنے کی ہدایت۔ وزیر اعلیٰ عثمان بزدار نے ڈیرہ غازی خان کی پسماندگی دور کرنے کی ٹھان لی۔ ضلع ڈی جی خان کو نئے بجٹ میں 4 گنا زیادہ ڈیولپمنٹ پیکج دینے کا فیصلہ کیا گیا۔ آئندہ مالی سال میں 49 ارب روپے مالیت کی 237 ترقیاتی اسکیموں پر کام شروع ہوگا۔ اسکیموں کے لیے 15 ارب روپے مختص کر دیے گئے ہیں۔ ڈپٹی کمشنر محمد علی اعجاز نے محکموں کو تیاری کرنے کی ہدایت بھی کر دی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ آئندہ سال تمام محکموں کے لیے مصروف ترین سال ہوگا۔ تمام محکموں کو گزشتہ سال کی نسبت 5 گنا زیادہ محنت کرنا ہوگی۔ اسکوپ ورک بنا کر عمل درآمد کروایا جائے گا۔ اسکیموں کے لیے جون تک فراہم کیے گئے فنڈز 100% خرچ کیے جائیں گے۔ سی پیک بے روزگاری کے خاتمے کے لیے امید کی کرن ہے۔ پنجاب حکومت کا ملتان میں اسکل فورس کی فراہمی کے لیے اسکل سٹی ہب بنانے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ نوجوانوں کو میڈیکل، گارمنٹس، آٹو پارٹس، ڈیولپمنٹ اور توانائی کے شعبوں کا ماہر بنا کر ہنرمند لیبر مہیا کی جائے گی۔ سی پیک بے روزگاری کے خاتمے کے لیے امید کی کرن نوجوانوں کو برسرے روزگار بنانے کے لیے چائنا کے تعاون سے اسکل سٹی ہب کی تعمیر کا میگا منصوبہ۔ پنجاب حکومت نے ملتان میں اسکل فورس کی فراہمی کے لیے اسکل سٹی ہب بنانے کا فیصلہ کر لیا۔ پنجاب حکومت چائنا کے تعاون سے سی پیک منصوبوں کے تحت پنجاب کے 4 اضلاع میں اسکل سٹی ہب تعمیر کرے گی، جو لاہور، ملتان، فیصل آباد اور سیالکوٹ میں بنائے جائیں گے۔ اسکل سٹی ہب میں نوجوانوں کو سی پیک کے بیشتر شعبوں میں کام کرنے کی مہارت دی جائے گی۔ نوجوانوں کو میڈیکل، گارمنٹس، آٹو پارٹس، ڈیولپمنٹ اور توانائی کے شعبوں کا ماہر بنا کر ہنرمند لیبر مہیا کی جائے گی۔ محکمہ صنعت و تجارت کے حکام کے مطابق اسکل سٹی کی تعمیر کے لیے بی او آر اور ضلعی انتظامیہ سے مل کر جگہ کا تعین کیا جا رہا ہے۔ نوابوں کے شہر کے مسائل کے بروقت ازالے کے لیے انقلابی قدم، جنوبی پنجاب سیکریٹریٹ بلڈنگ کے لیے بہاولپور میں جگہ کا انتخاب کر لیا گیا۔ ذخیرے میں 30 ایکڑ جگہ سیکریٹریٹ بلڈنگ کے لیے مختص کی گئی، جبکہ سیکریٹریٹ بننے سے عوام کے مسائل بہاولپور میں ہی حل ہو سکیں گے۔ نوابوں کے شہر کے مسائل کے بروقت ازالے کے لیے انقلابی قدم اٹھایا گیا ہے۔ جنوبی پنجاب سیکریٹریٹ بلڈنگ کے لیے بہاولپور میں جگہ کا انتخاب کر لیا گیا۔ ذخیرہ میں 30 ایکڑ جگہ سیکریٹریٹ بلڈنگ کے لیے مختص کی گئی ہے، جبکہ سیکریٹریٹ بننے سے عوام کے مسائل بہاولپور میں ہی حل ہوں گے اور عوام کی بہت ساری مشکلات کا حل بھی نکل آئے گا۔ نوابوں کے شہر کے مسائل بروقت ازالے کے لیے انقلابی قدم اٹھا لیا گیا ہے۔ جنوبی پنجاب سیکریٹریٹ بلڈنگ کے لیے بہاولپور میں جگہ کا انتخاب کیا گیا۔ ذخیرہ میں 30 ایکڑ جگہ سیکریٹریٹ بلڈنگ کے لیے مختص کی گئی، جبکہ سیکریٹریٹ بننے سے عوام کے مسائل بہاولپور میں ہی حل ہو سکیں گے۔ لوگوں کے لیے آسانی پیدا کرنے کی طرف حکومت کی جانب سے ایک اور انقلابی قدم، نوابوں کے شہر کے مسائل کے حل کے لیے جنوبی پنجاب سیکریٹریٹ بلڈنگ کے لیے بہاولپور میں جگہ کا انتخاب کر لیا گیا۔ ذخیرہ میں 30 ایکڑ جگہ سیکریٹریٹ بلڈنگ کے لیے مختص، سیکریٹریٹ بننے سے عوام کے مسائل بہاولپور میں ہی حل کیے جائیں گے۔ جنوبی پنجاب کی عوام کی بڑی مشکل کو حل کر دیا گیا ہے۔ دوسری جانب آپ کو بتائیں کہ طلباء کو کالج میں داخلے لینے کے لیے دور دراز کا سفر نہیں کرنا پڑے گا۔ رحیم یار خان میں تعلیمی میدان سے بڑی خبر، نئے مالی سال میں 9 نئے کالجز بنائے جائیں گے۔ مزید تفصیلات دیکھیے اس رپورٹ میں۔ رحیم یار خان جنوبی پنجاب کا سب سے بڑا ضلع ہے، لیکن تعلیم پر کوئی خاص توجہ نہیں دی گئی۔ موجودہ حکومت تعلیمی سیکٹر میں بہتری اور ترقی کے لیے اقدامات کر رہی ہے۔ طلباء کو کالج میں داخلے لینے کے لیے دور دراز کا سفر نہیں کرنا پڑے گا۔ تعلیمی میدان سے بڑی خبر ہے، نئے مالی سال میں رحیم یار خان میں 9 نئے کالجز بنائے جائیں گے۔ ڈپٹی کمشنر ڈاکٹر خرم شہزاد نے خوشخبری سنا دی۔ ان کا کہنا ہے کہ 5 بوائز کالج اور 4 گرلز کالج بنائے جائیں گے۔ 200 انصاف آفٹر نون اسکول بھی بنائے جا رہے ہیں۔ پریزنٹ گورنمنٹ جو ہے اس کا بہت زیادہ فوکس ہے سوشل سیکٹر پہ اور اسپیشلی ایجوکیشن سیکٹر اور ہیلتھ سیکٹر پہ، تو اسی لحاظ سے اس دفعہ کا جو ہم نے اے ڈی پی اپنا فارمولیٹ کیا ہے، اس دفعہ انشاءاللہ ہم ڈسٹرکٹ رحیم یار خان میں 9 نئے کالجز جو ہیں، جس میں 5 بوائز کالجز ہیں اور 4 گرلز کالجز ہیں، یہ ہم اسٹیبلش کریں گے انشاءاللہ۔ اسکول اپ گریڈیشن کا تو بہت ہی ایک جامع پلان جو ہے گورنمنٹ نے اس دفعہ دیا ہے، اور وہ انصاف آفٹر نون اسکول کے نام سے ہے۔ گورنمنٹ ایسوسیٹ کالجز برائے بوائز منٹھا، امین آباد، شہر رحیم یار خان، ججا عباسیاں اور سردار گڑھ میں بنائے جائیں گے۔ گورنمنٹ ایسوسیٹ کالجز برائے گرلز نلا موسانی، ترندہ سوائے خان،
खान, आबादपुर और नवाकोट में बनाए जाएंगे। डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर खुरम शहजाद ने मजीद कहा कि तुलबा को अच्छी और म्यारी तालीम देने के लिए तालीमी सेक्टर पर खुसूसी तवज्जो दी जा रही है। अभी आपको बताएं, लंबी लंबी मोबाइल कॉल्स करने के लिए बुरी खबर सामने आ गई है। 5 मिनट से ज्यादा कॉल करने वाले 75 पैसे टैक्स देंगे। मोबाइल फोन कॉल्स टैक्स पर वज़ीर खजाना का दोबारा से यू टर्न। बजट में टैक्स लगा दिया, पोस्ट बजट में वापस ले लिया, दोबारा फिर से टैक्स आयद कर दिया। अवाम का टैक्स लगाने पर इजहार बरहमी सामने आया है। आपको बताएं कि लंबी लंबी मोबाइल कॉल्स करने वालों के लिए अच्छी खबर नहीं है। 5 मिनट से ज्यादा कॉल करने वाले 75 पैसे टैक्स देंगे। मोबाइल फोन कॉल्स टैक्स पर वजीर खजाना का 2 बार यू टर्न। बजट में टैक्स लगाया, पोस्ट बजट में वापस लिया, दोबारा फिर से टैक्स आयद कर दिया गया है। अवाम की जानिब से टैक्स लगने पर इजहार बरहमी किया गया है। लंबी लंबी मोबाइल कॉल्स नहीं हो सकेंगी। 5 मिनट से ज्यादा कॉल करने वाले 75 पैसे टैक्स देंगे। मोबाइल फोन कॉल्स टैक्स पर वजीर खजाना का 2 बार यू टर्न। पहली मरतबा टैक्स लगाया तो वापस ले लिया, पोस्ट बजट में वापस लिया और दोबारा फिर से टैक्स आयद कर दिया गया है। अब बात करेंगे कोरोना वायरस की। खबरदार, खतरा अभी टला नहीं है। जुलाई में कोरोना की चौथी लहर का खतरा बरकरार है। सरबराह एनसीओसी असद उमर ने आगाह किया है। अवाम से वैक्सीन लगवाने और एसओपीज पर अमल दरामद करने की भी दरख्वास्त की। एनसीओसी के सरबराह असद उमर ने शहरियों से कोरोना वैक्सीन लगवाने और एसओपीज पर अमल करने की दरख्वास्त की है। असद उमर ने ट्वीट करते हुए कहा कि आज एनसीओसी में मसनूई ज़हानत पर मबनी बीमारियों के मॉडलिंग तजदिये का जायजा लिया गया। सख्त एसओपीज पर अमल और वैक्सीनेशन प्रोग्राम की अदम मौजूदगी में जुलाई में चौथी लहर नमूदार हो सकती है। सरबराह एनसीओसी ने शहरियों से दरख्वास्त की है कि जल्द से जल्द वैक्सीन लगवा लें। आपको अपडेट कर रहे हैं, एनसीओसी के सरबराह असद उमर ने शहरियों से कोरोना वैक्सीन लगवाने और एसओपीज पर अमल करने की दरख्वास्त की है। असद उमर की जानिब से ट्वीट करते हुए कहा गया है कि आज एनसीओसी में मसनूई जहानत पर मबनी बीमारियों के मॉडलिंग तजजिये का जायजा लिया गया। सख्त एसओपीज पर अमल और वैक्सीनेशन प्रोग्राम की अदम मौजूदगी में जुलाई में चौथी लहर नमूदार हो सकती है। सरबराह एनसीओसी ने शहरियों से दरख्वास्त की है कि जल्द से जल्द वैक्सीन को लगवा लिया जाए। डीएचक्यू अस्पताल सरगोदा की वाहिद सीटी स्कैन मशीन 2 रोज से खराब है। मरीज रुल गए, प्राइवेट सीटी स्कैन से महंगा टेस्ट करवाने पर मजबूर। जबकि अस्पताल इंतजामिया का कहना है कि मशीन जल्द ठीक कर ली जाएगी। सरगोदा के सरकारी अस्पतालों का अल्लाह ही हाफिज वाहिद सीटी स्कैन मशीन गुज़श्ता 2 रोज से खराब है, जिसकी वजह से मरीज परेशान है। यहाँ पे आप एक मैकेनिक रखे जो इसको ठीक कर सकते। दूर दूर से लोग आते हैं और यहाँ पे वो बेचारे मायूस होकर चले जाते हैं और ये तो बहाने हैं और हीले बहाने इनके। ये जो लोग जिम्मेदार हैं, मैं चैनल के थ्रू ये कहना चाहता हूँ कि इनको फौरी तौर पे आप सस्पेंड करें। डीएचक्यू अस्पताल सरगोदा की वाहिद सीटी स्कैन मशीन खराब होने से मरीज प्राइवेट सीटी स्कैन सेंटर से महंगा टेस्ट करवाने पर मजबूर हैं। अस्पताल इंतजामिया का कहना है कि पुर्जे लाहौर से मंगवाए हैं, जल्द मशीन ठीक कर ली जाएगी। परसों हाँ जी, मौसम ख़राब हुआ था तो उस वक्त ये तब आई है, एकदम से झटके से ऑफ हुई है ना। लेकिन इंजीनियर हमारे आए हैं, देखा है उन्होंने मशीन को और वो एक पार्ट है, वो कहते हैं वो रिप्लेस करना पड़ेगा। वो अभी गए हैं, अरेंज करके जैसे ही आते हैं हो जाएगी इंशाल्लाह। सरगोदा के शहरियों ने डीएचक्यू अस्पताल में मजीद सहूलियात देने का मुतालबा किया है। सरगोदा के सरकारी डीएचक्यू अस्पताल की वाहिद सीटी स्कैन मशीन खराब होना मामूल बन गया है, जिस पर इल्जाम ये भी आ रहा है कि इंतजामिया और अमले की मिली भगत से इसको खराब किया जाता है और ताकि बाहर प्राइवेट जो मशीनें हैं वहां पर मरीजों को भेजा जा सके और प्राइवेट जो मशीन रखने वाले मालिकान हैं वो भी इस मामले में मुलव्विस हैं। इसके ऊपर सरकारी तौर पर क्या होगा ये आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन मशीन आए रोज खराब रहना अब मामूल बन गया है। कैमरामैन फैजान खान के साथ मोहसिन मोल्क, सरगोदा। नासिर मियांवाली शहर में सफाई के नाकिस इंतजामात पर शहरी एमसी इंतजामिया पर सीख पा हो गए। कहते हैं शहर भर में मुतादद मकामात पर गंदगी के ढेर लगे हुए हैं। गलियों में सीवरेज का पानी जमा है, रिपोर्ट कर रहे हैं अख्तर मजाज। मियांवाली म्यूनिसिपल कमेटी के मेन गेट के सामने शहरियों ने एहतजाजी मुजाहरा किया। मुजाहिरीन का कहना था कि गली मोहल्लों में गंदगी के ढेर लगे हुए हैं और कई मकामात पर सीवरेज पानी भी जमा है। सफाई का जो कारकर्दगी इनकी बहुत नाकिस है। हर जगह पे कूड़े के ढेर पड़े हुए हैं, कहीं से भी गुजरो गंदगी पाँव को लगती है। नमाजी बंदा नमाज नहीं पढ़ सकता। जहाँ भी जाए पानी के सैलाब चल रहे हैं, बारिश आ जाए निकासी नहीं है।
शहरियों को कहना था कि एमसी इंतजामिया की जानिब से सब बेहतरीन की रिपोर्ट दी जा रही है। खिदमत आपकी दहलीज पर मुहिम में भी सफाई नहीं की गई। मियां वाली वजीर आजम का आबाई शहर है मगर इंतजामिया की कोई तवज्जो नहीं है। वज़ीर आज़म साहब का आबाई हल्का है और यहाँ पे सफाई का कोई इंतजाम नहीं है। हम वज़ीर आला साहब और वज़ीर आज़म साहब से इल्तमास करते हैं कि यहाँ पे खसूसी तवज्जो दी जाए। कोई पूछने वाला नहीं है इनको। कोई कमेटी वालों को जब कहते हैं हम कि सफाई करो तो ये कहते हैं आदमी भेज देंगे, कोई आदमी आता नहीं है। इनको कोई पूछने वाला नहीं है। हमारी वज़ीर आला से डीसी मियां वाली से इल्तिजा है कि इनको पूछें और इनको सफाई के लिए कहें। शहरियों ने वजीर आला पंजाब और वजीर आजम से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा किया है। शहरियों ने ऐलान किया है कि शहर में सफाई के मामलात को बेहतर ना किया गया तो एहतजाज के दायरा कार को वसी करेंगे। कैमरामैन शिराज इकबाल के साथ अख्तर मजाज, मियां वाली। तोमसा शरीफ बस्ती दौलतवाला में बुनियादी सहूलियात का फुकदान है। मकीनों का रोड, स्कूल, अस्पताल, पानी समेत दीगर सहूलियात की अदम फ्राहमी पर एहतजाज। आला हुकाम से नोटिस लेने का मुतालबा भी कर दिया गया है। रिपोर्ट देखिए। तौसा शरीफ से तकरीबन 100 किलोमीटर फासले पर वाक़ 10,000 नफूस पर मुश्तमिल आबादी बस्ती दौलतवाला के मकीनों ने सहूलियात की अदम फराहमी पर एहतजाज किया। सारा मुतालबा है वज़ीर आला पंजाब साहब को, सीएम साहब को, इत्थों दी 70 साल पाकिस्तान को बने हुए थी गन अज तक सबको कोई बुनियादी सहूलियत मुयसर नहीं थी। ना साढ़े को रोड है, ना स्कूल है, ना टफ टैल है, ना सेवरेज का कोई इंतजाम है। इडो खैबर पख्तूनख्वा है, इडो सूबा पंजाब की आखिरी सरहद ते असां पाए अज तक साढ़े को कोई शायद तक नहीं पहुंची। असां बहु ही नीचे हद तक जिंदगी गुजरने पाए, पीवन का साफ पानी तक ही को नहीं। वकीलों ने बताया कि बस्ती दौलतवाला में रोड न होने की वजह से शदीद मुश्किलात का सामना है, जबकि साफ पानी अस्पताल तक लोगों को मुयसर नहीं। एक प्राइमरी स्कूल है और बच्चियों के लिए कोई तालीमी इदारा नहीं। उन्होंने कहा कि खंबे लगे हुए हैं, बिजली नहीं। बरसात में बरसाती नालों की वजह से शहरों तक राब्ता मुनक़ता हो जाता है। हफ्ता हफ्ता तक खुर्द नौश तक का सामान मुयसर नहीं आता। अस्पताल तक पहुँचने से पहले मरीज दम तोड़ जाते हैं। सेवरेज टफटाइल का भी कोई निजाम नहीं। तौसा शरीफ से जो रोड है इसको यहाँ पे खास कर जो वोवा से आगे का रोड है उन तक अपने घरों तक पहुँचने में इन लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना है। यहाँ पे लोग एक पुल बनाने का जहाँ मुतालबा कर रहे हैं, इसके अलावा बुनियादी सहूलतों का जो मुतालबा कर रहे हैं और वज़ीर पंजाब से यही मुतालबा करते नजर आते हैं कि उनके जो मसाइल है वो हल किए जाएंगे। कैमरा टीम के साथ अजमत बुज़दार, रोहित, तौसा शरीफ। गवर्नमेंट कॉलेज लिया के तलबा फिजिकल इम्तिहान के खिलाफ सड़कों पर निकल आए। गवर्नमेंट कॉलेज से प्रेस क्लब तक एहतजाजी रैली निकाली। मुजाहिरीन का कहना था कि जब पढ़ाया ही नहीं गया तो फिजिकल इम्तिहान लेना सरासर ज्यादती है। जाहिद सरफराज की ये रिपोर्ट। लिया के तलबा फिजिकल इम्तिहानात के खिलाफ सड़कों पर निकल आए। प्रेस क्लब तक एहतजाजी रैली निकाली गई। मुजाहिरीन ने डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब लिया के बाहर नारेबाजी भी की। मुजाहिरीन का कहना था कि कोरोना के दौरान तालीम नहीं दी गई, अब फिजिकल की बजाय ऑनलाइन इम्तिहान लिया जाए। सर, जिस तरह तमाम क्लासेस को इंसाफ दिया गया ना, उनके ऑनलाइन क्लासेस किए गए हैं, वैसे भी हमारे भी ऑनलाइन क्लासेस या असाइनमेंट की सूरत में एग्जाम लिए जाएं। इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, हमें भी इंसाफ फराहम किया जाए। एहतजाज ऐसे ही जारी रखेंगे जब तक हमें इंसाफ नहीं मिल सकता। हम ऐसे ही अपनी स्ट्राइक और एहतजाज जारी रखेंगे। अब तो ये छोटा एहतजाज है, फिर हम इससे बड़ी स्ट्राइक करेंगे इंशाअल्लाह। सियासी रहनुमा मलिक हाशिम हुसैन सऊद समेत दीगर भी तलबा के एहतजाज में शरीक हुए और मुतालबात की हिमायत कर दी। तलबा मुजाहिरीन ने इस बात का ऐलान किया कि जब तक उनके मुतालबात तस्लीम नहीं होते उनका एहतजाज जारी रहेगा। कैमरा टीम के साथ जाहिद सरफराज, लिया। पंजाब हुकूमत ने मुल्तान डिवीजन में तेलदार अजनास की पैदावारी मुकाबलों में पोजीशन हासिल करने वाले काश्तकारों में इनामात तकसीम किए। कमिश्नर ऑफिस में मुनक्कदा तकरीब में काश्तकारों में चेक और सर्टिफिकेट तकसीम किए गए। गौहर रहमान रिपोर्ट कर रहे हैं। तेलदार अजनास की रिकॉर्ड पैदावारी मुकाबले में मुल्तान डिवीजन के आमिर अली ने 33 मन एकड़ सूरजमुखी की पैदावार करके अपने नाम कर लिया। पहली पोजीशन पर 3 लाख रुपए, दूसरी पोजीशन पर 2 लाख रुपए, जबकि तीसरी पोजीशन पर 1 लाख रुपए बतौर इनाम दिया गया। सानू महकमा ज़राअत की तरफों, हुकूमत पंजाब की तरफों जिहड़ा ना हौसला अफजाई की गई। फर्स्ट पोजीशन 3 लाख रुपए का इनाम दिता गया जी, और इंशाअल्लाह असीं जिहड़ा सनफ्लावर जिहड़ा नेक्स्ट भी लाते रहांगे ते दोस्तों भी दसांगे। काश्तकारों में तकसीम तकरीब इनामात कमिश्नर ऑफिस में मुनक्किद हुई। कमिश्नर मुल्तान जावेद अख्तर महमूद का कहना था कि तेल की पैदावार में खुद कफील होने से पाकिस्तान की इम्पोर्ट में कमी आएगी, जिससे मुल्क को फायदा होगा। एडिबल ऑयल है, खास तौर पर कैनोला और सनफ्लावर, इनको प्रमोट किया जाए। और इन्हीं पॉलिसीज़ की वजह से हम देख रहे हैं कि जो एकड़ेज है वो बढ़ रही है। और इसमें जो ये इनामात का सिलसिला है, इसमें कैश प्राइजेस भी हैं, इसमें सर्टिफिकेट्स भी हैं।
اس کا مقصد صرف ہمارے فارمرز کو انکریج کرنا ہے. چیک تقسیم کرنے کی تقریب میں ایڈیشنل کمشنر سرفراز احمد، اسسٹنٹ کمشنر جنرل مبشر رحمان اور ڈائریکٹر لوکل گورنمنٹ ملتان فاروق ڈوگر سمیت محکمہ زراعت کے افسران نے شرکت کی. کیمرامین محمد ہارون کے ساتھ گوہر رحمان، ملتان. رحیم یار خان کی خواتین کو انصاف کے لیے تھانوں کے چکر کاٹنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. ڈی پی او آفس میں خواتین سیل قائم کر دیا گیا ہے. خواتین اہلکار ہی تعینات کی گئی ہیں. عاصم صدیق کی رپورٹ. تھانوں میں جا کر انصاف حاصل کرنا خواتین کے لیے سب سے مشکل مرحلہ ہوتا ہے، اس لیے ڈی پی آفس میں خواتین سیل قائم کر دیا گیا ہے. انچارج اور عملہ سب خواتین ہیں. سائل کو گیٹ سے لے کر آنا، پانی پیش کرنا خواتین سیل کی ریت بنائی گئی ہے. ڈی پی او سرفراز کا کہنا تھا کہ سیل کا مقصد خواتین کے مسائل کے حل کرنا ہے. پولیس کا اصل جو کردار ہے کہ عام آدمی کے جو مسائل ہیں ان کا فوری حل کیا جائے. خواتین کی داد رسی کے لیے جو ان کے مسائل ہیں ان کے حل کے لیے ایک علیحدہ سے برانچ کا قیام کے عمل میں لایا گیا ہے تاکہ خواتین علیحدہ بیٹھ کے اپنی ہی لیڈی سٹاف ہمارا جو پولیس کا ہے ان کے ساتھ کھل کے اپنے مسائل بیان کر سکیں اور وہی لیڈی سٹاف ان کے مسائل کو حل کے لیے اور ان کی جو تھانوں میں کیسز گئے ہوئے ہیں ان کی پروگریس کو یقینی بنانے کے لیے اپنا کردار ادا کر سکیں. خواتین سیل میں درج کرائی گئی شکایت کا ازالہ خواتین سیل کی ذمہ داری ہوگی. کیمرامین انور سویل کے ساتھ عاصم صدیق، روہی، رحیم یار خان. زین معاشرتی بے حسی کے باعث رشتوں کا احترام ختم ہونے لگا ہے. اولاد کے ہاتھوں پریشان والدین بھی عدالتوں کا دروازہ کھٹکھٹانے لگے. والدین کے تحفظ کا قانون منظور تو ہو گیا لیکن بوڑھے والدین اپنی اولاد سے تحفظ کے لیے در بدر کے دھکے کھانے پر مجبور ہیں. جنوبی پنجاب میں رواں سال کے دوران 300 سے زائد بزرگوں، خواتین اور مرد حضرات نے اولاد سے تنگ آ کر عدالتوں میں دعوے دائر کیے جس میں گھر سے بے دخلی، ماہوار خرچہ اور بہتر دیکھ بھال نہ ہونے سمیت دیگر الزامات عائد کیے گئے. ملتان نواپور کے نواحی علاقے کا بزرگ اولاد سے جان کے تحفظ کے لیے کچہری پہنچ گیا. ملک برخودار نے دہائی دیتے ہوئے کہا اولاد جان کی دشمن بن گئی ہے. مار کھنڈال سب تک سارا پڑتا ہے، دعوے جھوٹے کرتے میں جا کو بھیجا بتا سکا بیٹا ہے نہ کہ بیٹا تے بیٹی دا سو بیا تے بیا رے بینا نکلنا بیا رے وہ بہت پریشان کی کھڑا ہے. ٹھاکر جائز دے اگر میں صبح دیکھ رہا اخبار دیتے کوئی سنے بھی نہیں پائی نہیں کو قتل کر دے سا. 70 سالہ بزرگ برخودار کا کہنا ہے حکومت نے والدین تحفظ ایکٹ منظور کیا ہے. اعلیٰ حکام عمل درآمد کرائیں. بیٹا بلال، بیٹی سنوبر اور داماد وقار نے مبینہ طور پر بیوی زرینہ مائی کو ناحق قتل کیا. جائیداد چھیننے کے لیے اولاد انصاف دیا جائے. پیرنٹس پروٹیکشن ایکٹ جو ہے وہ گورنمنٹ آف پاکستان نے منظور کر لیا ہے. اب جو بھی کوئی اپنے والدین کو کوئی بھی اولاد گھر سے نکالتی ہے یا تشدد کرتی ہے یا باہر نکالتی ہے اس کے خلاف قانونی چارہ جوئی ہوگی. وہ جیل بھی جا سکتا ہے اور اسے جرمانہ بھی ہوگا. ایڈوکیٹ احمد نواز میرانی نے اس بارے کہا جو اولاد والدین کی نافرمانی کرے گی انہیں سزا اور جرمانہ ادا کرنا ہوگا. نافرمانی کی صورت میں والدین کی اولاد کو دی ہوئی جائیداد بھی واپسی والدین کو منتقل کرنا پڑ سکتی ہے. اکلوتے سگے بیٹے اور بیٹی نے جائیداد کے لالچ میں اپنے 75 سالہ بزرگ والد کو گھر سے بے گھر کر دیا. اس وقت اعلیٰ حکام سے والدین تحفظ ایکٹ کے تحت تحفظ کی اپیل کرتے نظر آ رہے ہیں. کیمرامین عامر شاہ کے ساتھ ماہر عمران، ملتان. اور خبر یہ بھی ہے کہ ملتان میں کم عمر ڈرائیورز اب سڑک پر موٹر سائیکل نہیں چلا پائیں گے. سٹی ٹریفک پولیس کا ننھے ڈرائیورز کے خلاف 9 نمبر چنگی پر بڑا ایکشن سامنے آیا ہے. کم عمر ڈرائیورز کی موٹر سائیکلیں بند جبکہ والدین کو بیان حلفی کے لیے بلا لیا گیا ہے. مزید تفصیلات سردار علی خان کی اس رپورٹ میں. خبردار ہوشیار، کم عمر ڈرائیورز اب سڑک پر موٹر بائیک نہیں چلا سکتے. سٹی ٹریفک پولیس نے ننھے ڈرائیورز کے خلاف 9 نمبر چنگی پر آپریشن کا آغاز کر دیا. کم عمر ڈرائیورز کے خلاف آپریشن ڈی ایس پی ٹریفک مدنی یار کی سربراہی میں کیا گیا. کم عمر ڈرائیورز کی موٹر سائیکل بند، والدین کو بیان حلفی کے لیے بلا لیا گیا. ایک بچہ روکا ہے، اس نے آگے ایک چھوٹی سی بچی جو 2-3 سال کی ہے، ایک تو وہ کم عمر ہے، دوسرا اس نے آگے بچی بٹھائی ہوئی ہے. وہ دونوں حادثات کا سبب بن سکتے ہیں. اس سلسلے میں ہم بھرپور کارروائی کر رہے ہیں. افسران بالا کے احکامات کی روشنی میں والدین کو اس میں انوالو کر رہے ہیں. جو بچہ اس طرح کا ہمیں ملتا ہے جس کے خلاف ہم کارروائی کرتے ہیں. ڈی ایس پی ٹریفک مدنی یار کا کہنا تھا کہ اب ایکشن کا وقت ہے. کم عمر ڈرائیور سے رعایت نہیں برتی جائے گی. کم عمر ڈرائیورز کا 300 روپے کا چالان کیا جا رہا ہے. ننھا ڈرائیور اپنی جان بخشی کے لیے انوکھی منطق دیتا رہا. بابا کہتے ہیں آرام سے چلا کر، میں تو آرام سے چلاتا ہوں.
डीएसपी ट्रैफिक मदनी यार का मजीद कहना था कि वालिदैन से बयान हल्फी के बाद मोटरसाइकिल को वापस किया जाएगा, क्योंकि कम उम्र ड्राइवर्स की मामूली सी गलती से कई कीमती जानों का जिया हो जाता है। कम उम्र ड्राइवर्स अब हो जाएं होशियार, क्योंकि भारी भरकम चालान के साथ साथ उनकी मोटर बाइक भी बंद कर दी जाएगी। कैमरामैन मोहम्मद बिलाल के साथ सरदार अली खान, मुल्तान। हादसा हो या हंगामी हालात, लोगों को मदद करना है तो जिस्मानी तौर पर फिट रहना जरूरी है। रहीम यार खान के रेस्क्यू एहलकारों को जिस्मानी फिट रखने के लिए दौड़ और पुशअप के मुकाबले करवाए गए। आसिम सिद्दीक रिपोर्ट कर रहे हैं। आग हो या सैलाब, इमदादी कार्रवाइयों में सबसे आगे रेस्क्यू एहलकार ही होता है। इमदादी कामों में सबकत लेने के लिए फिटनेस जरूरी है। रहीम यार खान में रेस्क्यू एहलकारों की फिटनेस बरकरार रखने के लिए खेलों के मुकाबले हुए। 1 मील की दौड़ के लिए 7 मिनट का वक्त मुकर्रर किया गया। रेस्क्यू एहलकारों का कहना था कि फिट रहने के लिए कम खुराक का इस्तेमाल और एक्सरसाइज जरूरी है। ये हमारा जो मंथली फिजिकल एक्सरसाइज होती है, ये हमारे लिए बहुत बहुत जरूरी है। आज देख लें, मेरी उम्र 36-37 साल है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह फिट हूँ। और ये इस वजह से बहुत सारी हमारी इमरजेंसीज के अंदर भी डील करने के लिए हमारा स्टेमिना बिल्डअप होता है, हम बहुत बूस्ट होते हैं इस लिहाज से। हम फिट रहने के लिए नॉर्मल सी ग़िज़ा खाते हैं, ज़्यादा हैवी वो नहीं खाते होते, और अपने आप को मेंटेन रखने के लिए, फिट रखने के लिए हम ये जो है ना एक्सरसाइज करते हैं। सुबह वॉक भी करते हैं, एक्सरसाइज भी करते हैं, इवनिंग में हमें टाइम मिल जाता है, ठीक है, तो उसके लिए हम रनिंग वगैरह भी वो मामूल बनाया हुआ है। रेस्क्यू एहलकारों के दरमियान फिट रहने के लिए पुशअप भी लगाए गए। खेल के मुकाबलों में एक दूसरे से बढ़कर आगे जाने का जो हौसला और अज़म है, जब रेस्क्यू इमदादी कार्रवाइयों में आता है तो यही हौसला और अज़म इनका मददगार साबित होता है। कैमरामैन अनवर सुल के साथ आसिम सदीक, रोही, रहीम यार खान। मुल्तान स्पोर्ट्स जिम्नेशियम में नौजवान लड़कों और लड़कियों के माबैन इंसदादे मनशियात बैडमिंटन चैंपियनशिप के दिलचस्प मुकाबले हुए हैं। रिपोर्ट कर रही हैं सोहीरा तारिक। सेहतमंद माशरे की तश्कील तभी मुमकिन है जब नौजवानों को मुस्बत सरगर्मियों की जानिब राग़िब किया जाए। स्पोर्ट जिम्नेशियम में इंसदादे मनशियात बैडमिंटन चैंपियनशिप के मुकाबले हुए, जिसमें नौजवान लड़कों और लड़कियों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। अच्छा लगे, ऐसे इवेंट्स होने चाहिए लड़कियों के लिए, क्योंकि आजकल के जो माहौल जा रहा है उसमें गर्ल्स को बहुत मुश्किल से परमिशन मिलती है, और मतलब उन्हें आना चाहिए, हर गेम में पार्टिसिपेट करना चाहिए। डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट, एंटी नारकोटिक्स फोर्स और सिविल सोसाइटी फोरम के ताउन से मुकाबलों का इनेकाद किया गया। बैडमिंटन मुकाबलों का मकसद नौजवानों को ये पैगाम देना था कि वो खेल जैसी मुस्बत सरगर्मियों में हिस्सा लेकर माशरे का कारामद शहरी बन सकें। खेल मतलब सबको करनी चाहिए, स्पोर्ट्समैन होना चाहिए, ये मतलब दूसरी बुरी एक्टिविटीज से बंदा दूर रहता है इसके अलावा, और मतलब ये अच्छी गेम है, अच्छी वो एक्टिविटीज हैं तो करनी चाहिए। बैडमिंटन चैंपियनशिप जीतने वाले नौजवानों को इनामात से भी नवाजा गया। आज के इस बैडमिंटन मुकाबले का मकसद नौजवान नस्ल को ये पैगाम देना था कि तालीम के साथ साथ सेहतमंद जिंदगी गुजारने के लिए खेल भी खास अहमियत रखते हैं। कैमरामैन आमिर शाह के साथ सुहीरा तारिक, मुल्तान। होनहार तालिबा नूर फातिमा के साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स में सूबा भर में तीसरी पोजीशन आई। कामयाबी पर वालिदैन, असातिज़ा और क्लास फेलोज खुश। सूबाई वजीर तालीम मुराद राज से इनाम भी वसूल किया। जहानिया के गांव 106 सर के गवर्नमेंट गर्ल्स एलिमेंट्री स्कूल की होनहार तालबा नूर फातिमा ने इलाका का नाम रोशन कर दिया। महकमा तालीम पंजाब के ज़ेरे एहतमाम पहली बार सूबाई सतह पर साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स के मुकाबले मिडिल स्कूल सतह तक हुए। नूर फातिमा अपने प्रोजेक्ट बारे बताती हैं। उन्हें वालदा से आइडिया मिला, जिससे ऑटो फायर फाइटर का मॉडल तैयार किया। मेरे प्रोजेक्ट का नाम था फायर फाइटर प्रोजेक्ट विदाउट यूजिंग आर्डियानो, और ये इसे बनाने के लिए मैंने बहुत सी आम सी चीज़ें इस्तेमाल की थी। पीवीसी पाइप, डीसी मोटर पंप, फिलामेंट के जरिए हीट सेंस करता था और पानी स्प्रिंग होकर वाटर निकलता था। नूर फातिमा की वालदा बेटी की कामयाबी पर खुश हैं। कहती हैं माँ होने के नाते जो कर सकती थी किया, और लॉकडाउन के बावजूद मतलूबा अशिया फराहम की। पहली दफा फर्स्ट कंपटीशन हुआ, इसमें मेरी बेटी ने पार्टिसिपेट किया, और लॉकडाउन का सीजन था उस वक्त, और जितनी भी सपोर्ट इसे एज अ मदर, एज अ पेरेंट्स हम दे सकते थे, हमने इसको दी है। हमने ऑनलाइन अगर कोई चीज़ मंगवा सकते थे, बैटरी मंगवाई, वो नहीं चली, उसके बाद हमने यहाँ से अरेंज करके दी उसे, और एज अ मदर हम जितनी सपोर्ट की थी इसकी की। उसके बाद इस बच्ची ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी। होनहार तालबा फातिमा की टीचर भी कामयाबी पर निहाल हैं। कहा प्रोजेक्ट मुकम्मल करने पर भरपूर मुआवनत की। मुझे खुशी है इस बात की कि नूर फातिमा मेरी तालबा है। इनके प्रोजेक्ट को सॉल्व करने में मैंने इनकी भरपूर मुआवनत की है, और अल्लाह का शुक्र है तक के तहसील लेवल पे इन्होंने फर्स्ट पोजीशन हासिल की। स्कूल हेड मिस्ट्रेस ने बताया स्कूल से 3 तालबात ने हिस्सा लिया। नूर फातिमा ने तहसील और जिला में ओवल, जबकि सूबाई सतह पर तीसरी पोजीशन हासिल की।
होनहार तलबा की सलाहियतों को उजागर करने के लिए हुकूमत पंजाब की जानिब से खुशाइंद इकदाम है। इस तरह के मुकाबलों से बच्चों की न सिर्फ सलाहियतें उजागर होती हैं बल्कि वो बिलाशुबा मुल्क का नाम भी रोशन करेंगे। कैमरा टीम के हमरा माजिद असलम, रोही, जहानिया। नासिन मियांवाली के निजी कॉलेज में रंगारंग सालाना तकरीब का इनेकाद किया गया। तलबा ने खाके और टैबलोस पेश किए। अख्तर मजाज की ये रिपोर्ट। वाली के निजी कॉलेज में रंगारंग सालाना तकरीब का इनेकाद हुआ। तालिब इल्मों ने खूब इंजॉय करते हुए खाके और टेबलोज पेश किए। इस मौका पर तालिब इल्मों का कहना था कि ऐसी तकरीबात से काफी नया सीखने को मिलता है। ऐसी तकरीबात का इनेकाद हर साल होना चाहिए क्योंकि तालीमी सरगर्मियों के अलावा दीगर सरगर्मियों का होना भी जरूरी है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा खैर खैरियत से एक बहुत पुरवकार फंक्शन मुनक्किद हुआ और बहुत खुशी है कि इस तरह के फंक्शन हमारे मियांवाली के बच्चों के लिए, लड़कों के लिए भी इनेकाद किए जा रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ बड़ा बेहतर हो गया। अच्छा। तकरीब से खिताब करते हुए निजी कॉलेज के मैनेजिंग डायरेक्टर डॉक्टर हनीफ ने गरीब तालिब इल्मों को खुशखबरी सुनाई कि MBBS में दाखिला होने के बाद एक गरीब बच्चे और एक गरीब बच्ची को 5-5 लाख रुपए दिए जाएंगे। कॉलेज की जानिब से फराम की गई रकम से बच्चे बाआसानी तालीम जारी रख सकेंगे। हमने क्या किया है कि जो गरीब हमारी बेटियां और बेटे हैं जो FSC करने के बाद मेडिकल कॉलेजेस में या यूनिवर्सिटीज में जाते हैं उनको वहाँ पे पैसों का बड़ा प्रॉब्लम होता है। तो हमने ये किया कि एक बेटी के लिए 5 लाख और एक बेटे के लिए 5 लाख हर साल। बेटी के लिए अपनी वालदा के नाम से मुनव्वर खातून स्कॉलरशिप और जो बेटे हैं उनके लिए जो हमने किया है वो एक अपने उस्ताद मोहतरम सैयद अता मोहम्मद शाह स्कॉलरशिप, ताकि जब वो जाए मियांवाली से बाहर तो वो 5 साल अपने घर से 1 रुपया भी ना ले। तकरीब में मियांवाली के मारूफ सिंगर खुरम ज़ीशान और इमरान नियाजी ने गाना सुनाकर सामीन से खूब दाद वसूल की। निजी कॉलेज के सालाना फंक्शन में जहां पर बच्चों ने एंजॉय किया है वहीं पर बच्चों ने आज बहुत कुछ सीखा भी है। कैमरामैन सिराज इकबाल के साथ अख्तर मजाज, मियांवाली। न्यूज बुलेटिन से फिल वक्त।